Okay, so today we are starting the most important topic, that is the Human Genome Project. Okay, so Human Genome Project is a very important topic. Okay, so first of all, yes, screen is visible. Yes, ma'am. Okay, so first of all, you must know कि what is genomics. Okay, genomics क्या है, उसने क्या है, the whole जो sequence है, detailed map of human genome. Okay, detailed map of human genome. Okay, उसको आप बोलते हो genomics. तो उससे क्या जो genomics है, okay, just try to understand कि जो term genomics है, I'm just telling you कि before human genome project you must know कि what is genomics. So उसने कहा जो term genomics है, that was given by coined by Thomas Roderick ने coin की थी in the year 1986. Okay, remember this thing कि the term genomics was coined by, this is important, was coined by Thomas Roderick in 1986 to describe the scientific discipline of mapping, sequencing and analyzing the genomes. ठीक है, genomics को उसने जो term है वो दी थी in the year 1986 में Thomas Roderick ने to for the उसने to describe the scientific discipline of mapping, sequencing and analyzing the genomes. ठीक है, genome को map करना, उसको sequence करना, उसको analyze करना. Okay, means उसका term genome was coined to the complete set of chromosome and extra chromosomal genes of an organism. Means कि total genes कितनी है of an organism and extra chromosomal genes. Means कि एक organism के अंदर total genes जो है, that is the genome. That is the genome. And what is the genomics? Genomics means the scientific discipline of mapping, sequencing and analyzing genome is called as the genomics. Okay, so now उसने क्या है, field of genomics जो है, genomics जो है, the field of genomics is based mainly upon new area in biology, जिसको आप बोलते हैं bioinformatics. So we'll discuss the bioinformatics. Okay, so उसने कहा the field of genomics is mainly based upon a new area in biology that is called as the bioinformatics. So just remember कि जो bioinformatic branch of science है, branch of biology है, वो आई after the human genome project. Okay, तो उसने क्या है, now so जो जीनोमिक्स है दैट टोटली डिपेंड ऑन द, उसका किस पे बेस्ड है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे. व्हाट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स? ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, इज अ ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the management and analysis of biological information. Okay, branch of science that is concerned with the management and analysis of biological information. Biological information means the genes. Okay, so उसकी पूरी मैनेजमेंट, उसको पूरा एनालाइज करना, पूरे जीन्स को, उसके बेसिस को, ईच एंड हर एक बेस को जो है सीक्वेंस करना. तो दैट इज द bioinformatics. Okay, the branch of science concerned with the management and analysis of biological information that is stored in databases, जिसको हम एक प्रॉपरली डाटा के अंदर स्टोर करके डाटा जो है उसका स्टोर करके रखते हैं. जो टोटल ह्यूमन के 46 क्रोमोसोम है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर उन सबकी सीक्वेंसिंग हुई है. 22 जो आपके ऑटोजोम्स हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम है, तो उन सबकी जो सीक्वेंसिंग हुई है उसके लिए बड़ा सारा जो है स्पेस चाहिए. तो वो जो है सारी जो है वो स्टोर हुई है डाटा में, जो डाटा पूरा है वो स्टोर हुआ है, और उसके लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो ब्रांच है इंपॉर्टेंट है. ओके, तो जो आपकी जीनोमिक्स है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स से. क्यों? क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर वो जो जितना भी डाटा है, 46 क्रोमोसोम, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स का जो डाटा है, 2 सेक्स क्रोमोसोम का जो डाटा है, उनकी जीन्स का, उनके बेसिस का जो होल डाटा है, वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स से ही जो है वो स्टोर हुआ है. इसलिए उसने कहा कि जो जीनोमिक्स है वो डिपेंड करता है किस पे, बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे. सो 3 थिंग्स आर देयर. जीनोम यू नो कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन. देन व्हाट इज जीनोमिक? द साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ मैपिंग, सीक्वेंसिंग एंड एनालाइजिंग द जीनोम. एंड व्हाट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स? जीनोमिक जो हम करते हैं, जीनोमिक मीन्स कि सीक्वेंस करना पूरे जीन्स को, और उस पूरे जीन की सीक्वेंसिंग वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स. क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम वो थ्रू बायोइन्फॉर्मेटिक्स हम वो जो पूरा डाटा हमें मिलेगा 22 ऑटोजोम्स का, वो उसके अंदर स्टोर किया हुआ है. ओके, यस, आर यू ऑल गेटिंग? Yes, ma'am.
ओके, अब उसने कहा द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइज इन इट्स डीएनए सीक्वेंस एंड इफ एनी टू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर देन देयर शुड बी डिफरेंस इन देयर डीएनए एटलीस्ट एट सम प्लेसेस। ओके, उसने कहा है कि जो डीएनए सीक्वेंस है, उसने जेनेटिक मेकअप जो है ऑर्गेनिज्म का, वो कहाँ पे होता है, उसके डीएनए सीक्वेंस में। और की सीक्वेंसिंग तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, तो उसने कहा कि अगर दो इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस इन द डीएनए सीक्वेंस, देयर should be a difference in their DNA at least some places. Okay. Now, these assumptions lead to the idea of determining the complete DNA sequence of human genome and consequently of human genome project. तो क्या इस आइडिया की वजह से कि पूरे जितना भी डीएनए है, डिफरेंस क्या है बेसिकली, क्यों ये ओरिजिनेट हुआ कि कि बेस पेयर्स तो सब में सेम है, ह्यूमन बींग्स में सब में जो बेस पेयर्स हैं A T G C जो भी हैं वो सेम होंगे, वो डिफरेंस तो है नहीं। बट क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है कि कुछ में वो जो रिपीटेड सीक्वेंसेस बनाएंगे या कैसे अरेंज्ड है, उसकी सीक्वेंसेस पे डिपेंड कर रहा है। अदरवाइज तो की बेसिस आर द सेम, बट सीक्वेंसिंग जो है वो जो है थोड़ी सी डिफरेंट होगी। उसने कहा इस आइडिया की वजह से लिड टू द डिटरमाइनिंग द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस, की पता चले उसको पता करने के लिए कि डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में क्या डिफरेंस है। ओके, उसको डिटरमाइन करने के लिए कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस जो था ह्यूमन जीनोम का, वो इम्पोर्टेंट था। एंड फाइनली देयर इज अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और उसके लिए प्रोजेक्ट बना। एंड इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है, इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट विच टुक 13 years फॉर इट्स कंप्लीशन फ्रॉम 1990 to 2003। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि एक मेगा प्रोजेक्ट था, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट तो था ही। यू विल सी, अगर आप देखोगे कि कितने सारे इसमें जो है चीजें लगी हैं, कितनी मनी लगी है, कॉस्ट कितनी है हर एक बेस पेयर की। ओके, सो दैट्स वाई आगे हम देखेंगे कि वाई इट इज अ मेगा प्रोजेक्ट। ओके, सो इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। उसने कहा दैट टुक 30 years फॉर इट्स कंप्लीशन, इसमें 13 years लगे थे, इवन 13 years से भी ज्यादा। बेसिकली ये 2003 में कंप्लीट हुआ था, बट ड्यू टू क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि क्रोमोसोम नंबर 1 में सबसे ज्यादा जीन्स हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 1 की जो सीक्वेंसिंग में ज्यादा टाइम लग गया था, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है टोटल जो कंप्लीट हुआ है वो 2006 में हुआ है। अदरवाइज बाकी सभी क्रोमोसोम्स के लिए 1990 में स्टार्ट हुआ, 2003 में जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, एंड इट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। नाउ, एक्सक्यूज मी मैम, यस अर्पिता। हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंडर ये आते हैं ना कि हमारी जितनी भी ह्यूमंस में जीन्स होती है उन सबको स्टडी करना है। सीक्वेंस को, यस यस। तो मैम हमारी बॉडी में मतलब सब में सेम नंबर ऑफ जीन्स होती हैं कि मतलब अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर होता है हमारी जीन्स का? 3.7 जो है ना आपका बेस, वो आगे मैं बताती हूँ आपको, बट जस्ट रिमेंबर कि 3 × 10⁻⁹ उसने एस्टिमेटेड बेस पेयर, आगे अब हम देखेंगे बेस पेयर्स कितने हैं। बट जो आप बोल रहे हो ह्यूमन बींग्स में जीन सेम होती हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये नहीं कि मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 में इतनी जीन्स है, आपके क्रोमोसोम नंबर 1 में ऑल द जीन्स आर सेम इन ऑल द ह्यूमन बींग्स। क्रोमोसोम नंबर 1 में आगे हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम नंबर 1 में कितनी जीन्स हैं, तो वो सभी में सेम होंगी। बट थिंग इज दैट कि देयर इज अ रेपिटेटिव सीक्वेंस, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे रेपिटेटिव सीक्वेंस होता है। उसके अकॉर्डिंगली जब आप वो तो हमारा नेक्स्ट है कि जब आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखोगे ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अदरवाइज आई थिंक आपका क्वेश्चन यही है कि जो जीन्स होती हैं वो सभी ह्यूमन बींग्स में सेम होती हैं, जीन्स ये नहीं यस कि मैम। आप में ज्यादा, हाँ वो जो है वो नंबर सेम होगा, जितनी आप में उतनी मेरे में, देयर इज नो डिफरेंस। डिफरेंस कहाँ पे होगा, रेपिटेटिव सीक्वेंस में, कि कोई सीक्वेंस मेरे अंदर 4 बार रिपीट हो रहा है, आपके अंदर 6 बार रिपीट हो रहा है, तो वो उस सीक्वेंस जो है वो रेपिटेटिव सीक्वेंस है, हम देखेंगे। बट वो दैट थिंग वी विल सी इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, आगे हम मैम देखेंगे क्रोम। ओके, नाउ अब उसने क्या है, व्हाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। Okay, let's look into the picture and try to understand. उसने कहा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। उसने कहा इन रीजंस की वजह से जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो मेगा प्रोजेक्ट था। फर्स्ट ऑफ दैट, द ह्यूमन जीनोम इज सेट टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁹ base pairs, and if the costing of sequencing is
इन इज यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग 3 बेस पेयर होगी, ओके, देन टोटल कॉस्ट वुड बी अबाउट यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग 9 बिलियन अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो उसने कहा है कि ह्यूमन जीनोम जो है, उसने अप्रोक्सीमेटली, अभी उसने एस्टिमेटेड दिया है कि अगर उसमें 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स हैं, ओके, अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स हैं, तो अगर हर एक बेस पेयर में $3 लग रहे हैं, तो इसका मतलब कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 9 बिलियन। ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये मेगा प्रोजेक्ट क्यों है। मेगा प्रोजेक्ट इसलिए क्योंकि अगर इतना जो है, अगर ह्यूमन जीनोम में इतने बेस पेयर्स हैं, टोटल इतने बेस पेयर्स हैं, तो हर एक बेस पेयर के लिए $3 लग रहा है, तो टोटल डॉलर कितने होंगे, 9 बिलियन जो है अप्रोक्सीमेटली, इतने मतलब कॉस्ट इसकी है। Next, if the sequence were to be typed in a type were to be stored in a typed form, each page of the book containing 1,000 letter, ठीक है, उसने कहा कि अगर हम इस सीक्वेंस को, जो हम सीक्वेंस डिटरमाइन करते हैं, पूरे हर एक क्रोमोसोम का सीक्वेंस जो है वो डिटरमाइन होगा, तो उसने कहा कि हमने उसको स्टोर करना है, ऑब्टेन्ड सीक्वेंस को टाइप्ड फॉर्म इन बुक्स, ठीक है। तो अगर बुक्स में स्टोर करोगे तो आपको कितना चाहिए, उसने कहा देन यू नीड 3,300 बुक्स, okay, each book is having 1,000 pages, and each page contain 1,000 letters to store the information, okay, from a single human cell, okay, so this is important कि that's why it is a mega project, कि अगर आप सभी को सीक्वेंसिंग, सभी की सीक्वेंस करते हो, तो then you need 33,000 books, each having 1,000 pages, and each page contain 1,000 letters to store the information of the single to store the information of the DNA sequence of the single ह्यूमन सेल, ओके, दैट्स वाई बायोइन्फॉर्मेटिक इज देयर, कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है कि जिसमें उसने कहा पूरा डाटा जो हम स्टोर करते हैं, अदरवाइज इतनी बुक्स चाहिए, इतने पेजेस चाहिए, इतने लेटर्स चाहिए, okay, the large and enormous amount of data that was generated also necessitated the use of high speed computational devices for the data storage, retrieval, analysis, okay, so इन सब चीजों के लिए there is a development, उसने कहा human genome project was in close association with a new and rapidly developed area of biology known as the bioinformatics, इसीलिए bioinformatics जो area है, जो branch है, वो develop हुई है। तो you can see here a scientific discipline that encompasses the application of computing science and technology to analyze and manage the biological data, ठीक है, एनालाइज करना और मैनेज करना बायोलॉजिकल डाटा को, क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा है, ओके, सो दिस इज द रीजन कि बाय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसने कहा कि इसीलिए कि बड़ी सारी कॉस्ट लग रही है, इसमें बहुत कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, इतनी इसको बुक्स चाहिए, डाटा स्टोर करने के लिए इतनी सारी चीज़ें चाहिए, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ मेगा प्रोजेक्ट, ओके। नाउ दिस इज द 2 main factor that contribute in the completion of this project are कि प्रोजेक्ट जो है इजीली जो है मतलब कंप्लीट हुआ, उसमें यह है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक विच हेल्प टू आइसोलेट एंड क्लोन एनी सेगमेंट ऑफ डीएनए। बेसिकली इसमें भी जेनेटिक इंजीनियरिंग ही हुई है ना, जब मतलब कि डीएनए सीक्वेंसिंग हुई है, तो उन्होंने इसमें भी वही चीजें हैं, ओके, डीएनए को आइसोलेट करना है बॉडी से, देन उसको होस्ट के अंदर डालना है, होस्ट के अंदर डालना विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर होस्ट का, आप आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें होस्ट क्या थे, जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट है, वो आपके होस्ट हैं, एंड वेक्टर्स क्या हैं जो उनके YAC, जो आगे वी विल डिस्कस की व्हाट आर द होस्ट एंड व्हाट आर द वेक्टर्स। तो उसने कहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज जस्ट आई वांट टू टेल यू कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, जिसने विच हेल्प टू आइसोलेट एंड क्लोन एनी सेगमेंट ऑफ डीएनए, और हर एक डीएनए का जो सेगमेंट है उसका उसकी सीक्वेंसिंग हुई है, उसकी क्लोनिंग हुई है, इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो है उसने कहा कि इन चीजों ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया है फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ओके। नाउ व्हाट आर द गोल्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब आपको पता है कि गोल्स क्या है, ऑब्वियसली हम गोल्स ये है कि हमने उसको सारे जीन्स को स्टडी करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स, ओके, जितनी भी अप्रोक्सीमेटली 20,000 टू 25,000 जो जीन्स है ह्यूमन के अंदर, ओके, 30,000 अप्रोक्सीमेटली उसने दी हुई है कि जो जीन्स प्रेजेंट है, ओके, तो उनकी सीक्वेंसिंग करना, टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन, कि वी कैन आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी जीन, हम एक हर एक जीन को, हर एक जीन का जो सीक्वेंस है, हर एक जीन को स्टडी कर सके, तो उसके लिए जो है दिस इज द गोल ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। Then to determine the sequence of the 3 billion chemical base pair that constitute human DNA, okay, so secondly कि हम जितने भी 3 billion base pairs present हैं, you know कि 3 × 10⁻⁹ billion base pairs present हैं,
उसने उसको डिटरमाइन करने के लिए जो ह्यूमन डीएनए बनाता है, टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, टू इम्प्रूव द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर डाटा एनालिसिस। अब ये भी है कि जैसे डिजीजेस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, टू ट्रांसफर द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर, दिस इज इम्पोर्टेंट कि रिलेटेड टेक्नोलॉजी से हम ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट को यूज कर रहे हैं, को स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे आपका इंसुलिन, इंसुलिन इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल। तो यू नो कि अब हम ह्यूमन बीइंग की जीन को, इंसुलिन की जीन को आइसोलेट करके इकोलाई के अंदर डालते हैं और इकोलाई से हम इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज आल्सो। तो इसलिए उसने कहा टू ट्रांसफर द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्रीज एंड टू इथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, मतलब कि जो भी इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना। सो दिस इज द, बट इंपॉर्टेंट वन ये है, टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन, टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस। ये मेन जो है गोल्स है ह्यूमन प्रोजेक्ट के। तो उसने कहा है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्या बेनिफिट हुए हैं। ओके, तो उसने कहा इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई है ह्यूमन जेनेटिक्स की, जीन्स रिस्पॉन्सिबल, जो डिजीजेस के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनका पता चला है। उसने उसने प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिली कि हर जो जीन का सीक्वेंस नॉर्मल कैसे है, अगर उसमें डिफेक्ट होगा तो हमें पता चलेगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है। ओके, तो इनहेरिटेड डिजीजेस का पता चला है, ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं हम इनकी वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का। ओके, तो उसने कहा है एंड जो भी हम मॉडिफाइड जेनेटिकली डाइट प्लान्स वगैरह होते हैं वो हम सारा इसकी जो है वो कर सकते हैं। बट दीज आर द बेनिफिट, बट दीज आर द गोल्स ऑफ द गोल्स। इसमें आपने याद रखना है कि आइडेंटिफाई करना है सभी जीन्स को और सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है। नाउ दिस इज द बेनिफिट्स, ठीक है। तो उसने कहा द नॉलेज अबाउट इफेक्ट ऑफ द डीएनए वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल कैन लीड टू डिस्कवरी ऑफ न्यू वेज इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ वेरियस डिजीजेस अफेक्टिंग मैनकाइंड। सो व्हाट इज द मेन बेनिफिट, ये है कि हम डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर आपको सीक्वेंस पता होगा कि ये सीक्वेंस है, तो इफ यू नो द सीक्वेंस, अगर आपको नॉर्मल सीक्वेंस पता होगा अगर उसमें चेंज हुआ, कहाँ पे चेंज हुआ, तो देन यू कैन ट्रीट द डिजीज। ओके, आर यू गेटिंग ना, कि अगर आप नॉर्मल सीक्वेंस आपको पता है, ठीक है, अब डिजीज के बाद उस सीक्वेंस में चेंज आएगा तो यू नाउ यू कैन स्टडी कि अब ये वाला सीक्वेंस जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, तो हमें इसको करेक्ट कैसे करना है। अब करेक्ट आप करने का मतलब है कि आपको पता है कि नॉर्मल वाली जीन कैसी है। ओके, सो उसने कहा कि DNA variation among individuals, okay, can lead to discovery of new ways, diagnosis, treatment और prevention of various diseases। okay, और बाकी वही जो इसकी हैं कि हम ह्यूमन जेनेटिक्स को जो बेसिक है उसको पढ़ सकते हैं। डिजीजेस, स्पेशली ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस के लिए इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स के लिए, एंड इट कैन हेल्प इन लर्निंग अबाउट डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म दैट कैन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल कैपेबिलिटीज। ओके, सो इसके साथ साथ जो है बाकी ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी भी सीक्वेंसिंग हुई है, जैसे आपका राइस है। ओके, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ साथ बाकी चीज़ों की भी जो है, जैसे उसने कहा है कि बाकी जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट है, ड्रोसोफिला है, ओके, प्लांट राइस है, तो इन ह्यूमन जीनोम के प्रोजेक्ट के साथ साथ उनकी सीक्वेंसिंग भी जो है, जैसे राइस जीनोम प्रोजेक्ट है तो वो भी बाकी स्टार्ट हुआ है। तो उसका नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स लाइक कि उसने कहा इट प्रोवाइड बेनिफिट्स टू ह्यूमन बींग्स। ओके, प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू ह्यूमन बींग, द सीक्वेंसिंग इज ऑल्सो बीइंग ट्राइड अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमन बींग्स को बेनिफिट दे रहे हैं, जैसे नॉन ह्यूमन, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, ड्रोसोफिला हो गया, प्लांट्स में राइस जो है, तो इन सब की सीक्वेंसिंग भी इसके साथ साथ हुई है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ, these are the benefits of human genome project. Now this is important, the methodology of human genome project. Okay, so human genome project में we are having two major approaches, ठीक है, आप इसमें दो approaches हैं, you can see here, one is the expressed sequence tag and second one is the sequence annotation. Okay, अब फर्स्ट वाला क्या है कि अब उसने फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आई ऑलरेडी यू नो कि डीएनए में दो टाइप की पार्ट होता है, कोडिंग पार्ट एंड द नॉन कोडिंग कोडिंग पार्ट, ठीक है। तो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट आ जाएंगे डीएनए के अंदर, दोनों हैं। ओके, नाउ अब उसने कहा है कि दो इसमें अप्रोचेस इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज द एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, मीन इट मीन्स टू do the sequence of only the coding part. Okay, so you can see here this method focuses on identifying all the genes that are expressed as RNA, means जो expressed gene होती हैं, expression means जो जीन्स एक्सप्रेस होती हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करती हैं, मतलब कि जो कोडिंग पार्ट है। ओके, तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में आ गया कि सिर्फ सीक्वेंसिंग करना कोडिंग पार्ट की। ओके, देन सेकेंड यू आर हैविंग द सीक्वेंस एनोटेशन,
This method involves sequencing the whole set of genome that contain all coding and non coding sequence. ठीक है, तो सीक्वेंस एनोटेशन में क्या है कि कोडिंग और नॉन कोडिंग जो है दोनों को सीक्वेंस करना, okay, and then assigning function to different regions in the sequence. Okay, so two approaches are there. First is the expense sequence tag and second one is the sequence annotation. Okay, yes, is this clear? Yes, ma'am. Okay, now sequencing of genome. अब उसने क्या है कि okay, so just look here. From the total DNA from a cell is isolated and converted into random fragments of smaller size. ये वही है जैसे आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग है कि उसने कहा कि टोटल डीएनए जो है सेल में से आइसोलेट। यस अर्पिता, हाँ मैम जी बोलो। यस मैम फर्स्ट पार्ट नहीं दिख रहा है इसका। हाँ फ्रॉम द मैम अब टोटल दिख गया मैम, दिख गया दिख गया। okay, from the total DNA from the cell is isolated. Okay, first the total DNA जो है वो सेल से आइसोलेट किया जाएगा एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स, उसको फ्रेगमेंट्स में चेंज होगा। अब उसने कहा है कि दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, रीड इनटू द सेकंड पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीस फ्रेगमेंट्स आर क्लोन्ड इन ए सूटेबल होस्ट। अब इसको फ्रेगमेंट्स को हमने एक सूटेबल होस्ट के अंदर डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि उसके अंदर वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, उसकी वहां पे एम्पलीफिकेशन होगी। तो उसने कहा दीज फ्रेगमेंट्स आर क्लोन्ड इन ए सूटेबल होस्ट सच एज बैक्टीरिया और ईस्ट, और उसमें हम स्पेशलाइज वेक्टर्स यूज कर सकते, जो है स्पेशलाइज वेक्टर यूज हुए हैं इसमें, BAC YAC। ओके, जैसे आपका बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। ओके, तो उसने क्या है कि पहले सबसे पहले क्या करना है कि उसको निकालना है, पूरे डीएनए को सेल से आइसोलेट करना है, उसको फ्रेगमेंट्स में चेंज करना है। एंड देन चेंज करने का क्या है कि उसको जब आप उसको होस्ट के अंदर डालोगे, होस्ट के अंदर कैसे डालोगे, विद द हेल्प ऑफ द की वेक्टर्स। वेक्टर आप क्या यूज कर रहे हो, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है ये वेक्टर्स हैं। ओके, तो उसके बाद आप क्या करते हो, वो जो फ्रेगमेंट्स हैं उनकी एम्पलीफिकेशन करवाते हो। ओके, और उनके जो सीक्वेंसेस उनको प्रॉपर सीक्वेंसेस में अरेंज करोगे। और उसने कहा कि ये जो सीक्वेंसिंग है वो किसने दी है, फ्रेडरिक सेंगर ने। ओके, तो सेंगर का जो मेथड है सीक्वेंसिंग जो है वो इज डन बाय द सेंगर्स मेथड। ओके, ओके, सो नाउ उसने बोला है कि ये है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग मींस कि आपने उसको, सीक्वेंसिंग इज वेरी सिंपल, कि आपने क्या करना है, डीएनए को सबसे पहले, व्हाट इज सीक्वेंसिंग, डीएनए को सबसे पहले फ्रेगमेंट्स में कट करना है, फिर उसको किस में डालना है, वेक्टर्स में। वेक्टर आपके क्या आ गए, BAC और YAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। देन उसको होस्ट के अंदर डालना, होस्ट के अंदर वो क्या करेगा, रेप्लीकेट करेगा। तो उससे फिर आप क्या कर सकते हो, उसकी सीक्वेंसिंग कर सकते हो। ओके, नाउ सेलियंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब इसके फीचर्स क्या है, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस ये जो डाटा है इसमें होल पिक्चर जो है, दिस होल पिक्चर कंटेन मेनी डाटा। तो आपने ये चीजें लर्न करनी है। यू कैन सी इन द पिक्चर देयर आर 3.64 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन द ह्यूमन जीनोम। ठीक है, तो दिस यू हैव टू लर्न कि ह्यूमन जीनोम में इतने न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, 3164.7 मिलियन। ओके, इन एन एक्सक्यूज मी एवरेज, यस यस मैम, ये एक डीएनए की बात, एक सेल की बात कर रहे हैं? यस यस, एक सेल की बात है। ओके ओके, मैम। हाँ, मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस इन द ह्यूमन जीनोम इन एवरेज जीन। ठीक है, एवरेज जीन में कितने बेसिस हैं, अगर आप एक एवरेज जीन में लेते हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा डाटा है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका सिंगल, जैसे आप ले लो सिंगल जो ह्यूमन जीनोम है उसमें इतने मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस हैं। ओके, देन इन एवरेज जीन, एक अगर एवरेज जीन लेते हो तो उसमें 300 बेसिस हैं। जैसे उनका लार्जेस्ट ह्यूमन जीन इज डिस्ट्रोफिन, जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है वो डिस्ट्रोफिन है, जिसके अंदर 2.4 मिलियन बेसिस हैं। ठीक है, सभी जीन्स में डिफरेंट जो है वो बेसिस हैं, लेकिन जो जिसमें सबसे ज्यादा, तो वो उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सी है, डिस्ट्रोफिन, जो जिसके अंदर 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट है। ओके, देन नेक्स्ट, ये दिस होल डाटा इज इंपॉर्टेंट, हर एक पॉइंट में जो चीज लिखी हुई है यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ओके, टोटल नंबर ऑफ जीन इन ह्यूमन जीनोम आर एस्टिमेटेड एट 30,000। तो उसने कहा कि जो टोटल जो उसने एस्टिमेट किया था वो कितनी, 30,000। ऑलमोस्ट all of the nucleotide bases are exactly same in every human individual. ओके, उसने कहा कि टोटल नंबर ऑफ जीन जो एस्टिमेट की थी वो कितनी थी, 30,000 उसने बताई है। ओके,
एंड उसका 99.9 जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है वो सेम है सभी ह्यूमन इंडिविजुअल में, मतलब कि सिर्फ 0.1 जो है वो डिफर करता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, ओके, सिर्फ 0.1। अदरवाइज जो पूरा जो सीक्वेंसेस होता है ह्यूमन जीनोम में 99.9 जो है जीनोम जो है वो सेम है। फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन द फंक्शंस आर अननोन। हाँ ये भी है कि 100 में से 50% जीन्स जो है वो अननोन है, अननोन अनडिस्कवर्ड है, मीन्स कि आप ये भी बोल सकते हो कि नॉन कोडिंग पार्ट है जिसका पता ही नहीं है कि वो क्या है। तो ओनली 50% जो है वो उसका जो 50% का पता चल रहा है कि वो क्या काम कर रहे हैं, 50% जो है अनडिस्कवर्ड, मतलब कि अननोन है, ओके, 50% जीन्स जो है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 50% जो है जो नॉन कोडिंग पार्ट है। लेस देन 2% द ह्यूमन जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, तो 2% जो है वो कोड करता है प्रोटीन के लिए। देन रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, ओके, यस, वॉइस इज ऑडिबल, यस मैम। आर यू ऑल गेटिंग नाउ? यस मैम। अच्छा, अब इसमें देखो, repeated sequences make up a very large portion of human genome. These are stretches of DNA sequences which are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times. They have no direct coding function but help in understanding chromosome structure, dynamics and evolution. अब उसने कहा कि जो repeated sequences हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आगे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग में डिस्कस करेंगे कि what is the function of repetitive sequences. Repetitive sequences क्या है कि जो repeat होते हैं और उनकी repetition जो है वो डिफर है। मैंने जैसे बोला कि किसी में वो 10 बार रिपीट हो रहा है, किसी में 12 बार रिपीट हो रहा है, तो दैट इज डिफर, ओके, ओके। क्रोमोसोम नंबर 1, ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये देखो, दिस लास्ट जो 2 पॉइंट है, दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम नंबर 1 हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन, कितनी है 2968, एंड क्रोमोसोम Y हैज द लीस्ट नंबर ऑफ जीन 231। तो सबसे जो उसने कहा कि सबसे ज्यादा क्रोमोसोम नंबर 1 में जीन्स हैं 2968, और दिस इज द रीजन कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ था 2003 में, ठीक है, बट ड्यू टू द क्रोमोसोम नंबर, यस मैम क्रोमोसोम 1 में हम हेप्लॉइड सेट ले रहे हैं या डिप्लॉइड, मींस 2 ले रहे हैं या पूरा एक पूरा ही सेट, पूरा क्रोमोसोम डियर, पूरा क्रोमोसोम आपके, हम 22 ऑटोसोम्स की बात कर रहे हैं ना, तो वो हमारा पूरा क्रोमोसोम, ओके। नाउ क्रोमोसोम 1 हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है, इसकी वजह से मैंने आपको बोला कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ था 2003 में, बट ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ जीन्स इन केस ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 जो है, क्रोमोसोम नंबर 1 में, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो 2006 में कंप्लीट हुआ है, और क्रोमोसोम नंबर 5 में सबसे कम जीन्स हैं। देन लास्ट पॉइंट, जस्ट लुक इनटू द लास्ट में, देयर आर 1.4 मिलियन लोकेशंस इन ह्यूमन डीएनए, ओके, हाँ, ह्यूमन जीनोम वेयर सिंगल बेस डीएनए सीक्वेंसेस ऑकर, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो उसने कहा है कि 1.4 जो है बेसिस हैं, 1.4 मिलियन लोकेशंस हैं जहाँ पे ह्यूमन जीनोम में, जहाँ पे सिंगल बेस डीएनए सीक्वेंसेस जो है, ओके, जिसको आप बोलते हो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, जस्ट वेट। ओके, okay, are you getting what is the meaning of this? There are single nucleotide polymorphism. Single nucleotide polymorphism is very very simple. जैसे उसने कहा है कि जैसे आपका है कोड है, जैसे AATTCC ऐसे करके, तो सिर्फ एक जगह डिफरेंस होगा, A में डिफरेंस होगा, सिर्फ एक जगह जो है वो डिफरेंस होगा, उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन। जैसे सपोज देयर इज अ कोड, देयर इज अ सीक्वेंस AATTCCGG, ओके, अगर आप सेकेंड इंडिविजुअल में लोगे तो वो कैसे होगा, सारा सेम होगा, AATTCCG और एक जी अलग हो जाएगा, या फिर थर्ड ह्यूमन बीइंग में लोगे तो AATTCC या जी, मतलब सिर्फ एक सीक्वेंस जो है, एक जो कोड, एक जो बेस पेयर है उसमें चेंज होगा, बाकी जो है वो सारा सेम होगा, ओके। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि AATTCCGG अगर आप ऐसे लेते हो तो वो सब में सेम है, सिर्फ एक ए जो है वो एक जगह कुछ और हो जाएगा, अदरवाइज जो है वो सारा सेम होगा। तो इसमें देयर आर 1.4 मिलियन लोकेशंस हैं ह्यूमन जीनोम में जहाँ पे सिर्फ सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस है,
जिसको आप बोलते हो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, and this whole information is helpful in finding chromosomal location for Excuse disease. me, ma'am. Yes, Ma'am, are you sharing any screen? You're not, just wait. Okay, wait. Okay, are you able to see this whiteboard? No, ma'am. No. Okay, just wait. Okay, now screen is visible. No, ma'am. Yes, now. Yes, ma'am. Okay. ओके, सो उसने क्या है कि दिस इंफॉर्मेशन जो है इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग क्रोमोसोम लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसिंग एंड ट्रेसिंग ह्यूमन जीनोम्स. ओके, okay, so clear, these are the different sequences, different information that you have to learn कि total genes कितनी है, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सी है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स हैं वो आपका क्रोमोसोम नंबर 1 है. सो दिस होल डाटा यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू लर्न कि व्हाट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. कि जस्ट ट्राई टू कि अगर तीन, सपोज आप कंसीडर करो तीन ह्यूमन बींग्स को, तो तीनों में जैसे मैंने आपको बोला कि ए टी टी जी जी सी सी वो सेम होगा, सिर्फ वो 6 जो हैं बेस पेयर उनमें सिर्फ एक, तीनों में एक में डिफरेंस होगा, बाकी सारा सेम होगा, या ए अलग होगा या टी अलग होगा या जी अलग होगा, बाकी सारे जो है वो सेम होंगे. तो सीक्वेंस, सारा सीक्वेंस जो है वो सेम होगा. ओके, now applications and the future challenges. Its knowledge is helpful in research involving biological system including human biology. Okay, with the whole genome sequence and newer technology we can be systemic in our approach to various medical questions on a broader scale. Okay, अगर हमें पूरे genome sequence का पता है तो हम easily जो है मेडिकल क्वेश्चंस की जो भी हमें प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. And all the genes in a human in a genome means all the transcript in a particular tissue organ tumor can be studied. Okay, तो अगर हमें सभी जीनोम जीन्स का पता है तो हम पर्टिकुलर जो ऑर्गन है, टिश्यू है, ट्यूमर है, हर चीज को स्टडी कर सकते हैं. एंड इसका जो एप्लीकेशन जो इसने दी है कि राइस जीनोम प्रोजेक्ट में दी है. ओके, राइस जो है साइंटिफिक नेम ओरेजा सेटिवा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन द वर्ल्ड. The rice genome is well mapped and is the smallest of the major cereal crop genome. ठीक है, तो जो राइस जीनोम प्रोजेक्ट इसके बाद जो है ड्यू टू दिस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ राइस जीनोम प्रोजेक्ट. ओके, तो उसने कहा कि राइस जीनोम, क्योंकि आपको पता है कि राइस जो है वर्ल्ड में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन द वर्ल्ड. ओके, नाउ मैम. यस, मैम वो जो आपने अभी स्लाइड की थी वो 1 मिनट दिखाना फिर से. ओके, दिस वन. ओके, so next we are having the rice genome project. Excuse me, ma'am. Yes, मैम say. ये इसका क्या मतलब हुआ? इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ मेजर सीरियल क्रॉप जीनोम्स. इट इज इसका जीन्स जो है ना वो सबसे नंबर कम है ना क्रोमोसोम का, जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं जो जीनोम है इसका सबसे छोटा है. अच्छा, ओके मैम. ओके, जो जी क्रोमोसोम्स हैं वो सबसे छोटे हैं, जो जीन्स है वो सबसे कम है जितने भी सीरियल क्रॉप्स लेते हैं, इसलिए इजीली इसको हम इसको सीक्वेंस कर पा रहे हैं. और सेकेंडली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट जस्ट डोंट वरी, वी विल डिस्कस द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सॉरी द राइस जीनोम प्रोजेक्ट इन द separate class. So this is all about the human genome project. Now anything you want to ask? Yes everyone. Yes, yes. मैम आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा दी है? नहीं, in the next class we will discuss the DNA fingerprinting. Okay, others, any question is there? Yes. No, ma'am. Okay, Saima, clear? No, ma'am, it's clear. Okay, so in the next class we will discuss about the DNA fingerprinting and the rice genome project. Okay,
So can I end the session now? Yes, ma'am. Okay. All of you just leave the class.